Turn on the videos. Write down. First entry, reserve fund account debit to Jitendra Dharmendra Devanand. Reserve fund account debit to Jitendra Dharmendra Devanand. Reserve fund to Jitendra Dharmendra Devanand. Reserve fund distributed. Reserve fund distributed. Reserve fund to Jitendra Dharmendra Devanand. Reserve fund distributed. Reserve fund distributed. Second entry for PNL. Jitendra Dharmendra Devanand to PNL. Accumulated loss transferred. Accumulated loss transferred. Accumulated loss transferred. Accumulated loss transferred. Third entry is the big journal entry. Realization to plant to investment to stock to debtors to goodwill. Realization to plant to investment to stock to debtors to goodwill. Sundry assets transferred to realization. 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 Fourth entry for RDD. RDD to realization 2000. RDD to realization 2000. RDD transfer to realization. RDD transfer to realization. RDD transfer to realization. Then creditors outstanding expense to realization. Creditors outstanding expense to realization. Being sundry liabilities transferred to realization. Creditors outstanding expense to realization. Being sundry liabilities transferred to realization. Being sundry liabilities transferred to realization. Being sundry liabilities transferred to realization. Then bank to realization 54,500. Being sundry assets realized. Bank to realization 54,500 being sundry assets realized. Sir, थोड़ा slow. Bank to realization 54,500 being sundry assets realized. Bank to realization 54,500 being sundry assets realized. Entry number 7, Dharmendra capital to realization 500. Dharmendra capital to realization 500. Dharmendra capital to realization 500. Being unrecorded investments taken over by Dharmendra. Being unrecorded investments taken over by Dharmendra. Being unrecorded investments taken over by Dharmendra. Unrecorded investments taken over by Dharmendra. Okay. Then realization to bank 57,600. Realization to bank
57,600. Realization to bank 57,600. Being sundry liabilities paid off. Being sundry liabilities paid off. Realization to bank 57,600. Being sundry liabilities paid off. Being sundry liabilities paid off. And realization to Jitendra capital 1,000. Realization to Jitendra capital 1,000. Realization to Jitendra capital 1,000. Being dissolution expenses paid by Jitendra. Being dissolution expenses paid by Jitendra. Being dissolution expenses paid by Jitendra. Being dissolution expenses paid by Jitendra या फिर realization expenses paid by Jitendra. Dissolution expense paid by Jitendra या फिर realization expenses paid by Jitendra. Tenth entry is for loss. Dharmendra ji loss on realization transferred. Loss on realization transferred. Entry number 11 is bank to Devanand 1,000, being part payment received from Devanand. Bank to Devanand 1,000, being part payment received from Devanand. Bank to Devanand 1,000, being part payment received from Devanand. Being part payment received from Devanand. Then you have this insolvency entry, entry number 12. That will be Dharmendra Jitendra to Devanand. Dharmendra Jitendra to Devanand. Being efficiency of insolvent partner shared by solvent partners in PSR. Being deficiency of insolvent partners shared by solvent partners in PSR. Being deficiency of insolvent partner shared by solvent partners in PSR. Then the last entry for final settlement we can club Dharmendra Jitendra to bank. Dharmendra Jitendra to bank. Being surplus paid off on final settlement. 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 13 entries you should have. Take a look. 13 journal entries you should have. Okay, now we are doing the next sum, that is sum number 19. It is with current account and single partner insolvency. Okay, अब तक हम लोग सिंगल पार्टनर इंसॉल्वेंसी विद कैपिटल करते आ रहे थे, अभी विद करंट है. तो हाउ मेनी अकाउंट्स वी नीड टू ओपन? एक तो रियलाइजेशन होगा, फिर पार्टनर्स करंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल, बैंक. इसमें कोई पार्टनर्स लोन नहीं है, तो 4 अकाउंट्स. रियलाइजेशन, पार्टनर्स करंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैंक. बना लो फटाफट. सम नंबर 19, विशाल, पूनम एंड रवि. 19th prop. Draw for sum number 19. Current account with single partner insolvency.
सर तो डेफिशिएंसी का एंट्री कैपिटल को करंट में जाएगा। कैपिटल। I'll show it to you. ड्रॉ कर लो 4 अकाउंट्स। सर कैश अकाउंट आएगा ना? कैश एंड हैंड दिया ना? यस, कैश अकाउंट। यस, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, करंट एंड रियलाइजेशन। Sorry. All right. सर 1 मिनट रुको ना। Continue. First step, empty the balance sheet. Okay, start with your balances of capital. Vishal, Poonam, Ravi. All the three partners are having credit balance. So start with buy balance BD. Okay. Voluntary dissolution है. As I told you, like admission and retirement, it will happen on the date of balance sheet. जहाँ पे उनका बैलेंस शीट रेडी हुआ है, फाइनल अकाउंट्स बना के, वहाँ पे हमारा डिसोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है. वहाँ का क्लोजिंग, यहाँ का ओपनिंग 30, 30 and 15.
30,000, 30,000 and 15,000. Then we have current accounts, which Poonam are having credit balance, so buy balance BD. Vishal and Poonam are having credit balance 1650 and 1800. But Ravi is having a debit balance. If you see on the asset side, they have given excess withdrawal हो गया, to balance BD 14,500. इससे ज़्यादा drawings कर लिया है तो on the debit side 14,500. The two partners buy balance BD, one partner to balance BD. Then we go to reserves and losses. So check for reserves or losses. Do you have any? I think you can see P&L account on the asset side, right? That is your accumulated loss. Which account should we transfer that P&L to? Should we transfer it to capital or should we transfer it to current? Tell me. Current. Current. सर सब करंट में होगा. सब current में होगा, except for the last part of insolvency. I'll tell you why. Okay. बाकी सब entries अभी जो capital में हो रही थी सब current में. So to P&L account, distribute that loss in the PSR, which is 5:3:2. That is 1,500, 900 and 600. Sorry, 1,500, 900 and 600. That's your P&L account, accumulated loss transferred. Okay. Then the remaining assets will go to your realization debit side. So go to realization debit, transfer the remaining assets to sundry assets. All the assets at book value, starting with goodwill, 4,000. 24, furniture 6,000, stock is 27. These are all the old values, book values. Debtors at book value were 16,000. RDD अलग से डालना है. RDD is a not an external liability, it's a provision kept for debtors, so need not pay it to anyone. RDD separately ledges the loss and transfer itself to partners capital automatically. Okay, cash in hand को transfer मत कर देना, ये बड़ा silly mistake हो जाता है. Students sometimes transfer cash or bank to realization. Don't do that. Okay, big mistake. This is 28, 34, 50, 77,000 is the total. I think cash जाएगा cash account में as to balance brought down. Cash will go to cash account as to balance BD, which is 1250. Profit and loss account we have already transferred. Ravi's current we have already written the balance. Now let's go to the liability side as buy sundry liabilities, buy sundry liabilities, buy sundry liabilities. Creditors and bank overdraft. Two sundry liabilities we are having, creditors and bank overdraft. Always remember guys, bank overdraft is a third party liability. Okay, bank overdraft is never going to come in your bank balance or cash balance. सब में कैश बैंक बैलेंस दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो नील कर देना, बट बैंक कोड ही हमेशा अलग लाइबिलिटी. assume always there are two bank accounts, एक में ओवरड्राफ्ट चल रहा है, एक में नॉर्मल बैलेंस चल रहा है, तो वो ओवरड्राफ्ट वाला always is a third party liability. Transfer it to realization and pay it off just like you pay off creditors, bills payable, loans, outstanding expenses. Okay, हमेशा बैंक ओवरड्राफ्ट विल बी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी. इसी चैप्टर में नहीं, कोई भी चैप्टर में पूरे साल में, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, इधर भी बैंक ओवरड्राफ्ट दिखेगा तो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी. ऑलवेज अज्यूम देयर आर टू अकाउंट्स.
transfer it to realization and then pay off. Okay, comfortable? So emptying the balance sheet, first step has been carried off. Okay. Yash, can you tell me the second step after this? After emptying the balance sheet, what are we supposed to do? Sundry assets realized. Sundry assets realized. Okay, so what will be the entry for that? Bank to realization. Bank to realization. यहाँ पे cash to realization हो जाएगा because cash account है, तो cash to realization, तो realization में buy cash. Starting with machinery. Machinery realized 28,000. Machinery realized 28,000. Furniture and stock realized 20% less. देखो क्या दिया है, ध्यान से पढ़ो. Furniture and stock realized 20% less. तो दोनों मिला के दे दिया है ना, चिपका के, तो हम लोग को भी चिपका देने का इधर. Furniture and stock realized 20% less. तो दोनों वैल्यू ऐड करो और उससे 20% माइनस कर दो. तो 27,000 प्लस 6,000 दोनों को ऐड करो और उसमें से माइनस 20% कर दो. So 33,000 minus 20%, that's 33,000 minus 6600, which is 26,400, I think. Please check. 26,400 आ रहा है. Realized value of furniture and stock. ऐसा भी हो सकता है ना, फर्नीचर और स्टॉक अलग अलग रियलाइज हो सकता है. कर सकते हो 20% कम, आंसर सेम ही आएगा. नो प्रॉब्लम. यू कैन डू सेपरेट अमाउंट्स भी दिखा सकते हो. एंट्री तो कॉमन ही है ना, हम लोग इंटरनल डिटेल्स फिल कर रहे हैं क्योंकि वहां पे क्वेश्चन में साथ में दिया, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन टुगेदर. ओके, कभी भी साथ में दिया तो साथ में. अभी इधर 20% दिया है, कभी बोलेगा 2,000 लेस, तो दोनों मिला के 2,000 लेस करने का. इंडिविजुअल फिर नहीं कर सकते. इंडिविजुअली कितना लेस हुआ पता नहीं है. अभी इधर तो परसेंटेज है तो चल जाएगा. दोनों का 20% या टोटल का 20% लो, आंसर इज सेम. ओके, कभी भी साथ में दिया तो साथ में उड़ाना. डेटर्स रियलाइज्ड 14,000. डेटर्स रियलाइज्ड 14,000. 14,000 मिले डेटर से. डेटर से 16 के 16 का 14 रियलाइज हुआ है. क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह. सो टोटल कर लो. व्हाट्स योर टोटल? 40, 68,400. 68,400 मिला सबको. 68,400. अच्छा, बाय कैश का करस्पॉन्डिंग एंट्री कैश अकाउंट में लिख देना. टू रियलाइजेशन 68,400. बाय कैश का करस्पॉन्डिंग एंट्री टू रियलाइजेशन अकाउंट 68,400. 68,400. That was your sale of asset. Please check and tell me, are there any assets being taken over? कोई asset take over हो रहा है क्या? Please check. Is there any asset getting taken over? कुछ नहीं है. None of the asset is getting taken over, right? बराबर है. अच्छा, गुडविल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया. What are we supposed to do with that? गुडविल का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. क्या करोगे? गुडविल बेचना है? Ignore. Get some money? No, ignore, because it was an asset. Asset with nil realizable value should be ignored. Okay, now लाइबिलिटी होता तो पे ऑफ कर देने का. एसेट है तो इग्नोर मार देने का. ओके, जैसे हम पता है एडमिशन रिटायरमेंट में करते थे, गुडविल को ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट. ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. लॉस अगर कुछ रियलाइज नहीं हुआ मतलब पूरा लॉस है. ओके, वो गुडविल जैसे राइट ऑफ करते थे ना ओल्ड पार्टनर, वही हो रहा है यहाँ पे. वाया रियलाइजेशन होगा खाली. सो गुडविल का कोई पैसा नहीं आया. Then move to liabilities. Next step is moving to liabilities. Pay off the liabilities. So entry will be realization to cash. Realization account debit to cash account. Realization account debit to cash account. Okay. चेक कौन सी लाइबिलिटीज को हमने पे ऑफ किया है. सबसे पहला तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस चेक करो है क्या सम में कुछ. एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वेर 1,000 रुपीज. दिखा सबको? तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर 1,000. वो सबसे पहला हमने चुका लिया. उसके बाद दिया हुआ है क्रेडिटर्स वे पेड 6,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम्स. सो क्रेडिटर्स को हमने 6,000 रुपए चुकाए, सेटल कर दिया. जितना चुकाया वही देखना है अपने को. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नॉट शोन इन द अकाउंट ₹700 आर टू बी पेड ऑफ. Will there be any different entry or the entry will be same?
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सेम एंट्री। सेम एंट्री, इसी के साथ ऐड कर दो, चाहे रिकॉर्डेड लायबिलिटी हो चाहे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो, जर्नल एंट्री विल स्टिल रिमेन सेम. इज दैट क्लियर गाइस? whether it's a recorded liability or an unrecorded liability, journal entry will not change. Assume that the book value was 0 और अभी तुमने सीधा 700 रुपीज पे ऑफ किया, तो 700 रुपया पे ऑफ कर देना डायरेक्टली इधर से ही, 700 रुपीज पे ऑफ कर दो. अच्छा, और कुछ पे ऑफ करना है? चेक करके बताओ मुझे. आर वी सपोज टू पे ऑफ एनीथिंग एल्स कि हो गया? सर सब में जर्नल है. वेट, जर्नल है? बैंक ओवरड्राफ्ट। Bank overdraft, you will have to repay the bank overdraft. Okay, don't forget to repay bank overdraft. As I told you, bank overdraft is a third party liability. Nothing is specified about bank overdraft. You always pay it off at book value like any other liability, whether it is bank overdraft, whether it is creditors, bills payable, loan, any loan from partner. कुछ info नहीं है तो आपको book value पे liability को pay off करना और करना ही है, याद रखना. So this is 11 plus 6, 17,700. 17,700 हो गया, बराबर है? 17,700. Is that clear? Then realization में to cash, तो cash में corresponding entry भूलना मत. cash में by realization 17,700. cash में by realization 17,700. कैश में बाय रियलाइजेशन 17,700. Got it? कैश में बाय रियलाइजेशन 17,700. Then after that let's go for liability taken over. चेक कर लो बराबर से, is there any liability that has been taken over? बराबर से पढ़ना, कोई liability take over हुआ है क्या? चेक कर लो. I don't think so. कोई external liability भी नहीं है, खत्म. You can calculate your profit or loss. Anyone has calculated? Then tell me the total. 94,700. 94,700 is the total. Profit है कि loss है? Loss. Loss है. कौन से account में should I transfer the loss? Current. That transfers to capital or current? Current. ये आपको रखना है मेन. Current account वाले सब में सब कुछ current से होगा. So buy partner current account. Okay. विशाल current. पूनम current. Ravi current. Vishal, Poonam and Ravi current. What is your total loss? Can you all tell me? 9,800. 9,000। Divide करो. 4,900. Sir, 9,000. हाँ सर, सिर्फ 9,000 ही आ रहा है। चेक करो. ऊपर RDD भी 800 का, शायद वो नहीं लिया है यशवी. 9,000 का लॉस आ रहा है, प्लीज चेक. सॉरी, 9,000 का लॉस डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. So 4,500, 2,700 and 1,800. Please check. This is loss on realization. Loss on realization in your PSR. Is that clear? Then by partner current का, partner current में आ जाएगा to realization. Partner current में to realization account 4,500, 2,700 and 1,800. यहाँ तक हमने पूरा प्रॉब्लम सेम किया है, कुछ अलग नहीं है. ओके, खाली जो एडजस्टमेंट हम लोग कैपिटल से कर रहे थे वो अभी करंट से कर रहे हैं. जो कैपिटल से हो रहा था वो अभी एडजस्टमेंट्स वी आर शोइंग इट वाया करंट अकाउंट. दैट्स इट. बाकी तो सब नॉर्मल तरीके से हो रहा है, बराबर है. देन नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस. इसके बाद एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है. कौन इंसॉल्वेंट हो रहा है? ध्यान से चेक करो. Ravi becomes insolvent and only 200 rupees are recovered from his estate. Ravi जो है insolvent हो रहा है, the third partner. अभी with current account, how do you do the settlement? Can anyone tell me? Current account के साथ कैसे करना चाहिए अपने को? Transfer the balance of current to capital.
पहले क्या करो, ट्रांसफर द बैलेंस ऑफ करंट टू कैपिटल, सबका की खाली रवि का? सबका। सबका 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 ओके, सबका, क्योंकि कैपिटल में करना है आपको, हमेशा प्रोपोर्शनेट कैपिटल का एडजस्टमेंट वाया कैपिटल करना है, ठीक है। एक्चुअली यू कैन डू इट बाय बोथ, करंट से भी कर सकते हो, कैपिटल से भी कर सकते हो, ओके। बट करंट से जनरली हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि शायद करंट में कम पैसा पड़े तो वापस इश्यू हो जाएगा, आपको कैपिटल लेना पड़ेगा, ओके। तो करंट से आप कभी भी सॉल्वेंट टू इंसॉल्वेंट का एंट्री करते थे ना, सॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल टू इंसॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल, डेफिसिट शेयर करने का, वो सॉल्वेंट पार्टनर करंट से भी कर सकते हैं, बट वी अवॉइड करंट, बिकॉज करंट में कभी पैसा कम रहेगा तो वापस आपको कैपिटल यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो बेटर शट डाउन करंट, ट्रांसफर एवरीथिंग टू कैपिटल, और कैपिटल में ही सब काम खत्म करो जैसे नॉर्मली करते थे। तो नॉर्मल कैपिटल वाले सम में और करंट वाले सम में एक स्टेप बढ़ जाता है आपका, खाली क्या एक्स्ट्रा स्टेप करना है, जस्ट ट्रांसफर करंट टू कैपिटल, पहले करंट को खाली करके कैपिटल में डाल दो और फिर नॉर्मल प्रोसेस करो। आपका जो पार्ट पेमेंट आ रही है वो रिसीव करो, इंसॉल्वेंट पार्टनर से जो भी पार्ट पेमेंट आ रही है वो रिसीव कर लो, और उसके बाद सॉल्वेंट टू इंसॉल्वेंट खत्म कर लो, सिंपल एज दैट। गॉट इट? ऑल ऑफ यू क्लियर विद दैट? तो ऐसा मत समझना यहाँ पे करंट है तो करंट से करना है, इंसॉल्वेंट कर सकते हैं लेकिन कभी कम पड़ जाता है तो वापस आपको कैपिटल करंट दोनों यूज करना पड़ेगा, अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्सिटी होता है, ठीक है। तो अवॉइड दैट, डायरेक्टली क्या करना, जब भी आपको सिंगल पार्टनर इंसॉल्वेंसी होता है विथ करंट, ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन, शिखा, whenever you have single partner insolvency with current account, what are you supposed to do? Simply transfer the current account balances to capital, करंट को बंद करके डाल दो कैपिटल में और फिर कैपिटल से खत्म कर दो। कैपिटल से जो भी नॉर्मल कर रहे हो आप, पार्ट पेमेंट रिसीव करो और उसके बाद सॉल्वेंट टू इंसॉल्वेंट, स्टोरी खत्म करो। इज दैट क्लियर? ऑल ऑफ यू क्लियर विद दैट? हेलो? सो पहले तो चुपचाप सबका करंट बंद करना है, सबको कैपिटल में डालना है। किसी का डेबिट हो सकता है, किसी का क्रेडिट डिफरेंस हो सकता है, ध्यान से देखना। सबका करंट उठा के कैपिटल में डालना है, सबका करंट उठा के कैपिटल में डालना है। शट डाउन द करंट एंड ट्रांसफर इट टू कैपिटल। तो सबसे पहला आई एम शटिंग डाउन मिस्टर विशाल का करंट, सो डेबिट साइड इज ग्रेटर, दिस इज 6000 ये प्लीज अलग अलग आएंगी क्योंकि अलग अलग अकाउंट्स है सब। ये एक्चुअली 6 अकाउंट है, ये 6 लेजर अकाउंट हमने यहाँ पे बताए हुए हैं। कैन यू ऑल सी दैट दीज आर 6 डिफरेंट लेजर अकाउंट्स, 6 डिफरेंट लेजर अकाउंट्स, 3 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो 6 का 6 एंट्रीज अलग अलग दिखेगा। बाय बैलेंस, सॉरी बाय करंट में क्या लिखेगा मैं, बाय विशाल्स कैपिटल अकाउंट, बाय विशाल्स कैपिटल अकाउंट, दिस विल बी 4350 एंड बाय विशाल कैपिटल का विशाल कैपिटल में हो जाएगा टू विशाल करंट अकाउंट 4350. Similarly, shut down Poonam. So this is 3600 on the debit side, 3600 minus credit. I'll write by Poonam's by Poonam's capital account. कितना आ रहा है? 1800. By Poonam capital का टू पूनम करंट 1800 एंड देन रवि को बंद करना है, तो रवि का है 14 प्लस 6 15 16,900 एंड इधर आएगा बाय सर आप रवि। इतना अलग अलग लिख रहे हो, उससे अच्छा सब अमाउंट्स एक लाइन में और बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं लिख सकते? लिख सकते हो, बाय पार्टनर कैपिटल एंड टू पार्टनर करंट एक लाइन में भी लिख सकते हो, ओके। बट बेटर है थोड़ा प्रेजेंटेशन वाइज अगर इंडिविजुअल दिखाओगे तो, ओके। बोर्ड्स चला लेता है, एक साथ भी लिखाओगे तो भी चला लेगा, बाय कैपिटल और टू करंट एक लाइन में, ओके, इट्स फाइन, यू कैन डू दैट वे। देन टू रवि करंट, this is Ravi's column 16900, okay,
जर्नल एंट्रीज में आपको अलग अलग करना है, वो याद रखना है. जर्नल शो ऑल 3 सेपरेट जर्नल एंट्रीज. इधर चलेगा, आप क्लब कर दो. जर्नल एंट्रीज में अलग अलग दिखाना है आपको. विशाल कैप टू विशाल करंट, पूनम कैप टू पूनम करंट, रवि कैप टू रवि करंट. हमने क्या किया, करंट को बंद किया और उठा के डाल दिया कैपिटल. अब आपका प्रोसेस नॉर्मल है. अभी कौन इंसॉल्वेंट हो रहा है, तो रवि. तो रवि का एक नोट बनाना है जो हम लोग नॉर्मली बनाते थे. वर्किंग नोट 1, अमाउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम रवि, अमाउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम रवि, amount to be received from Ravi. How do we calculate that amount? It is debit minus credit. Simply debit minus credit. तो रवि से अपने को कितना पैसा लेना है, जरा एकदम ध्यान से देखना यहाँ पे. रवि से how much money are we supposed to get? 16,900 is debit minus 15,000 is credit. तो नसीब से 15,000 उसका क्रेडिट में था तो हम लोग बच गए. बिजनेस का ज्यादा नुकसान नहीं है. 16,900 माइनस 15,000, उससे लेना था 1,900 रुपीज. ओके, 1,900 रुपीज लेना था रवि से, डेबिट माइनस क्रेडिट. लेस रवि ब्रिंग्स और रवि गेट्स और रवि ब्रिंग्स फ्रॉम हिज पर्सनल एस्टेट. हाउ मच इज रवि एबल टू गेट? चेक करो. रवि 200 रुपीज, 200 रुपया लाया वो घर से, तो 200 रुपया माइनस कर दो, यू गेट 1700. सो 200 का एंट्री क्या होगा? कैन यू टेल मी व्हाट इज दैट एंट्री फॉर 200 रुपीज व्हिच रवि इज गेटिंग? सॉरी, कैश टू रवि कैपिटल. कैश टू रवि कैपिटल. तो रवि कैपिटल में बाय कैश 200 रुपीज एंड कैश में टू रवि कैपिटल. कैश में टू रवि कैपिटल, दैट्स 200 रुपीज. कैश रिसीव्ड फ्रॉम रवि, राइट? कैश रिसीव्ड फ्रॉम रवि. अच्छा, उसके बाद जो भी नेट डेफिशिएंसी है, दिस इज द नेट डेफिशिएंसी ऑफ रवि, दिस इज द नेट डेफिशिएंसी ऑफ रवि, एंड दिस विल बी shared by who? Vishal and Poonam, the remaining two partners. In which ratio? In PSR, in profit sharing ratio. Vishal and Poonam will share it in PSR. I think the PSR between Vishal and Poonam is 5:3, right? 5:3 में डिवाइड करो इसको, पॉइंट में आएगा, राउंड ऑफ कर देना. कितना आ रहा है बोलो? Sir, 1063 and 637. 1063 and 637. इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा? अभी आपका नॉर्मल जर्नल एंट्री सॉल्वेंट टू इंसॉल्वेंट. तो विशाल कैप, पूनम कैप टू रवि कैप, सिंपल एज दैट. विशाल, पूनम टू रवि, 1063, 637 and 2000. Sorry, 1700. 1063, 637 and 1700. Okay, this is your normal journal entry for sharing the loss of bad debts. बैड डेट्स का जैसे लॉस पार्टनर शेयर करते थे, वैसे यहाँ पे इनसॉल्वेंट पार्टनर का लॉस सॉल्वेंट पार्टनर शेयर कर रहे हैं. इज इट क्लियर? सो दिस इज सिंपली अ लॉस ऑफ बैड डेट्स व्हिच वी आर शेयरिंग, नथिंग डिफरेंट. कंफर्टेबल ऑल ऑफ यू? ओके, सो विशाल कैप, पूनम कैप टू रवि कैप. ध्यान से पोस्टिंग करना इसकी. विशाल, पूनम टू रवि. तो विशाल में टू रवि कैप, विशाल कैप में टू रवि कैप 1063 एंड रवि कैप में बाय विशाल कैप, रवि कैप में बाय विशाल कैप 1063. सेम वे पूनम कैप में टू रवि कैप 637 एंड पूनम में टू रवि, रवि में बाय पूनम कैप, that is 637. I think your Ravi capital should automatically tally. Shut down the remaining two. I think both the partners are having surplus, so you can settle them साथ में as two cash account. Vishal is having a credit balance of 30,000. So credit minus debit कितना आ रहा है? देखो, credit total minus debit कितना आ रहा है? 27,560. Sorry, 27. 563. 27,563 इसका पूनम का है. हाँ, पूनम का. विशाल का कितना है? 24,587. 24,587.
करस्पॉन्डिंग एंट्री टू कैश का हो जाएगा आपका बाय विशाल कैपिटल, दैट इज सॉरी 24,587, and by Poonam Capital this is 27,563. 27,563. It should tally, सेल्फ टैली हो जाएगा आपका कैश अकाउंट, जितना पैसा था आपने 70850. दे दिया पार्टनर्स को. 70850 it tallies. Please check. 70850. So in case of your what do we say, सर वर्किंग नोट दिखाओ ना. वर्किंग नोट ये रहा ना, नीचे ही है. सर 69,850 पे हो रहा है. 69,850 में टैली हो रहा है. हाँ सर. दोनों साइड चेक करो. हाँ सर. हाँ सर. ध्यान देना भैया, सिली एरर, सब कुछ राइट रहेगा, एक सिली एरर, एक मकबूल. See, so when you have single partner insolvency with current account, are all of you clear क्या करना है? सिंगल पार्टनर इंसॉल्वेंसी विथ करंट में क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है, एक स्टेप बढ़ गया, करंट अकाउंट को उठा के डाल दो कैपिटल में. जस्ट वन एक्स्ट्रा स्टेप, जस्ट ट्रांसफर ऑल द पार्टनर्स करंट टू कैपिटल अकाउंट एंड देन नॉर्मल प्रोसेस, पैसा कलेक्ट करो, डेफिसिट शेयर करो. ओके सर सबका जर्नल एंट्री अलग है ना उसमें. सबका वो करंट टू कैपिटल में जर्नल एंट्री सबका अलग है. जर्नल ड्रॉ कर लो फटाफट. ड्रॉप द जर्नल. Draw the journal, all of you. Sorry. पेपर का मिस्टेक्स देखा? मेजॉरिटी ऑफ द मिस्टेक्स आर फाउंड इन ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स नहीं पढ़ा था लगता है. फोकट का जिधर सबसे ल्यूक्रेटिव मार्क्स आ रहा है वही नहीं पढ़ा. 1 mark, 2 mark, 3 mark, 4 marks some of you have lost in objective. 4 मार्क गुल हो गया. सबसे इजीएस्ट पार्ट आपका पेपर में ऑब्जेक्टिव है. 10 मिनट में 15 मार्क्स स्कोरिंग है. स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से ही पढ़ना है, सब कुछ फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक था, ऑल द ऑब्जेक्टिव्स. कॉमन ऑब्जेक्टिव वो गेन रेशियो का रॉन्ग हुआ है मेजॉरिटी लोगों का. In which ratio is the share of goodwill divided in case of retirement or death? Gain ratio. In which ratio it is divided in case of admission? तो sacrifice. हमेशा share of goodwill goes in gain या sacrifice ratio. Okay? Remember that. That one objective में काफी लोगों का wrong गया है. बाकी तो सब true or false में थोड़ा गड़बड़ कर दिया है किसी ने. Death is permanent retirement, that's true. चेक कर लेना आंसर्स. मिस्टेक समझ में आया सबको? मिस्टेक्स क्या क्या हुआ है? डोंट रिपीट देम. डोंट रिपीट द मिस्टेक्स. ओके, रिमेंबर द मिस्टेक. चलो ड्रॉ कर लिया जर्नल. फर्स्ट एंट्री स्टार्टिंग विथ रिजर्व्स और लॉसेस. तो आई थिंक देयर इज अ लॉस. ये लॉस डिस्ट्रीब्यूशन का एंट्री कर लो. नंबर 1, विशाल पूनम रवि करंट टू पीएनएल. विशाल पूनम रवि करंट. विशाल करंट, पूनम करंट, रवि करंट टू पीएनएल. being accumulated loss transferred to partners capitals. Being accumulated loss transferred to partners capitals. Current. Being accumulated loss transferred to partners current. Sorry. Being accumulated loss transferred to partners current. Being accumulated loss transferred to partners current. Devanshi, can you tell me the next entry? Big journal. Big journal entry. What is that?
Realization to goodwill, machinery, furniture, stock, and debtors. Realization to goodwill, machinery, furniture, stock, and debtors. Perfect. Realization to machinery to goodwill, goodwill to machinery to furniture to stock to debtors. Being sundry assets transferred to realization. Being sundry assets transferred to realization. Being sundry assets transferred to realization. Shikha, can you tell me the third entry? RDD to realization. RDD to realization. RDD transferred to realization. RDD to realization. RDD transferred to realization. RDD transferred to realization. Bhavik, can you tell me the next entry? सर थोड़ा स्लो जाओ ना. Hello. RDD to realization being RDD transferred to realization. Sorry, Bhavik. Next entry. Bhavik. Entry number 4. Sir, revival to Vishal. अरे फोर्थ एंट्री है. एम्प्टिंग द बैलेंस शीट चालू है. एसेट्स ट्रांसफर कर दिया, आरडीडी कर दिया, उसके बाद क्या ट्रांसफर करने का? लायबिलिटी. Liability. क्रेडिटर बैंक ओवरड्राफ्ट टू रियलाइजेशन. क्रेडिटर बैंक ओवरड्राफ्ट टू रियलाइजेशन. बैलेंस शीट खाली कर रहे हो ना, उसका एंट्री है. क्रेडिटर्स बैंक ओवरड्राफ्ट टू रियलाइजेशन 16,500 total. 6,500, 10,000, 16,500. Being sundry liabilities transferred to realization. 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 Got it? 10. Janvi, can you tell me the fifth entry? Cash to realization. Perfect. Cash to realization, entry number 5. Cash to realization being sundry assets realized. Sorry. Cash to realization 68,400 being sundry assets realized. Being sundry assets realized. Being sundry assets realized. Entry number 6, Ayushi, can you tell me? Realization to cash. Perfect. Realization to cash 17,700 being sundry liabilities paid off. 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 Okay. Ayush, can you tell me the 7th entry? Vishal current, Poonam current, Ravi current to realization. Perfect. Vishal current, Poonam current, Ravi current to realization. Vishal, Poonam, Ravi current to realization. Being loss on realization transferred to partners current. 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 सर Yeah. सर अगर वो उसमें फर्म का नाम दिया रहता तो ऊपर इन द बुक्स ऑफ फर्म का नाम ही आएगा ना? Yes. फर्म का नाम दिया तो इन द बुक्स ऑफ फर्म का नाम, नहीं दिया तो फिर पार्टनर का नाम. Then लॉस ऑन रियलाइजेशन के बाद हम लोग जाते हैं करंट अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट में. याद आया? वृष्टि, व्हाट इज द नेक्स्ट एंट्री? कैन यू टेल मी? अनम्यूट.
विशाल कैपिटल, पूनम कैपिटल, रवि कैपिटल, इसको क्लब मत करो, इसको अलग ही रखना तीनों को. अच्छा विशाल कैप टू विशाल करंट, विशाल कैप टू विशाल करंट. वैसे ही पूनम कैप टू पूनम करंट, रवि कैप टू रवि करंट. विशाल कैप टू विशाल करंट. नरेशन सबका सेम होगा. बीइंग बैलेंस इन विशाल current transferred to Vishal's capital. Being balance in Vishal's current transferred to Vishal's capital. Being balance in Vishal's current transferred to Vishal's capital. All the three entries separately. Entry number 9 will be Poonam cap to Poonam current. Poonam cap to Poonam current being balance in Poonam current transferred to Poonam capital. Being balance in Poonam current transferred to Poonam's capital. Being balance in Poonam's current transferred to Poonam's capital. Being balance in Poonam's current transferred to Poonam's capital. Similarly, Ravi cap to Ravi current. Ravi cap to Ravi current. Being balance in Ravi's current transferred to Ravi's capital. Being balance in Ravi's current transferred to Ravi capital. सी यहाँ पे बाय कैपिटल आ रहा है, कभी टू कैपिटल भी आ सकता है, तो फर्क नहीं पड़ता, वॉट एवर इज द डिफरेंस. ओके, बाय कैप या टू कैप, आपका नरेशन सेम है. बैलेंस इन करंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल, रिमेंबर दैट. बैलेंस इन करंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल. ओके, बैलेंस इन करंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल. ऑल ऑफ यू गॉट दीज थ्री एंट्रीज. कौन से भी साइड पे डिफरेंस आए, क्रेडिट में आ रहा है तो बाय कैपिटल, डेबिट में आ रहा है तो टू कैपिटल, करंट को बंद करना है, कैपिटल में ट्रांसफर करना है, कोई भी बैलेंस है, डज नॉट मैटर. ओके, एंड उसके बाद हम लोग इंसॉल्वेंसी पे जाते हैं. सुहानी, कैन यू टेल मी द नेक्स्ट एंट्री? Cash account to Ravi's capital account. Very good. Cash account debit to Ravi's capital account, being part payment received from Ravi. Cash account to Ravi's capital account, 200 rupees being part payment received from Ravi. Being part payment received from Ravi. Cash to Ravi cap, 200 being part payment received from Ravi. Correct. Mehak, can you tell me the next entry? Yes, sir. Vishal capital, Poonam capital to Ravi capital. This you can club solvent insolvent wala. Vishal cap, Poonam cap to Ravi cap. Vishal cap, Poonam cap to Ravi cap. Vishal cap, Poonam cap to Ravi cap, being balance, being deficiency of insolvent partner shared by solvent partners in PSR. Being deficiency of insolvent partner shared by solvent partners in PSR. Being deficiency of insolvent partners shared by solvent partners in PSR. Deficiency of insolvent partner shared by solvent partners in PSR. Got it? Then what next? Last entry for settlement, entry number 13. Manan, can you tell me the last entry? Vishal cap, Poonam cap to cash. Vishal cap, Poonam cap to cash. 248, 2457, 27563. And what's the total? Can anyone tell me the total? This is 51, 52, 52, 150. 52, 150. 52, 150. Vishal cap, Poonam cap to cash. Total is 52, 150. Vishal cap, Poonam cap to cash. Total is 52, 150. Mehaki Mehta. Vishal cap, Poonam cap to cash. 52, 150. Being surplus in Vishal cap and Poonam cap paid off on final settlement. Being surplus in Vishal cap and Poonam cap paid off on final settlement. Being surplus in Vishal cap and Poonam cap paid off on final settlement. Draw for the next sum number 20. 20th problem. Sum number 20. Sorry.
सर नरेशन क्या है? Being surplus in partners' capital paid off on final settlement. Being surplus in partners' capitals paid off on final settlement. You can also write simply final settlement made. Being final settlement made. Chalo. Draw for the next sum. Next sum is again with current account. Sum number 20. इंदु, इंदर एंड इंदिरा 30 जून का बैलेंस शीट है, उधर बंद हो रहा है और हम लोग डिसोल्यूशन सेम डे पे कंप्लीट कर रहे हैं. इन द बुक्स ऑफ इंदु, इंदर एंड इंदिरा, sum number 20 इंदु, इंदर, इंदिरा. देयर इज नो लोन अकाउंट. लोन दिया, पार्टनर लोन नहीं है, वो लोन ऑन मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी है. तो प्रॉपर्टी गिरवी रख के आपने लोन लिया हुआ है, सिक्योर्ड लोन है वो, उसका कुछ लेना देना नहीं है अभी फिलहाल. जब इंसॉल्वेंट ऑल पार्टनर हो जाएंगे तभी वो काम का है. इधर तो नॉर्मल लोन ही है वो. अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज revaluation account? Personal, real or nominal? Nominal. Revaluation account is a nominal account, right? All expenses, losses are transferred ना, उसको जो gain loss है एक साथ उठा के डाल देते हो कैपिटल में बंद करके. What type of account is realization account? Realization account कौन से टाइप का है? Real, personal, nominal? Nominal. Nominal. Realization is also nominal. All the profit loss on realization. नॉर्मली इनकम एक्सपेंस वाला नॉमिनल होता है. यहाँ पे बिजनेस बंद हो रहा है ना, तो सब एसेट लायबिलिटी का प्रॉफिट लॉस एक साथ उठा के डाल रहे हो आप कैपिटल में. तो रियलाइजेशन में है क्या? सब एसेट लायबिलिटी का प्रॉफिट लॉस है अल्टीमेटली. वही रिकॉर्ड करने के लिए हमने रियलाइजेशन को ओपन किया था कि हमें झंझट ना हो, हर एक एसेट का प्रॉफिट लॉस अलग अलग ट्रांसफर करने की जरूरत ना हो. इसलिए हमने रियलाइजेशन को एक साथ ओपन करके पूरा प्रॉफिट लॉस साथ में डाल दिया कैपिटल में, तभी एसेट का सेल का या लायबिलिटी पे ऑफ करने का. तो उसमें भी सबका प्रॉफिट लॉस ही पड़ा हुआ है. तो रियलाइजेशन इज ऑल्सो नॉमिनल, रिवैल्यूएशन इज ऑल्सो नॉमिनल, ट्रेडिंग P&L अकाउंट आर ऑल्सो नॉमिनल. व्हाट अबाउट कैपिटल एंड करंट अकाउंट? व्हाट अबाउट कैपिटल एंड करंट? आर दे रियल, पर्सनल और नॉमिनल? पर्सनल. ह्यूमन बींग्स. कैपिटल ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो capital and current both are personal. What about cash account, guys? What type of account is cash? Real. Real. And what about account is bank? Real. Real. No, Personal. 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 Institute है. लेकिन आपको कैश बैंक साथ में दे दिया तो रियल कर देने का हमेशा. कैश और बैंक साथ में आ गया तो इट इज ऑलवेज रियल. खाली दिया है तो रियल, खाली बैंक दिया है तो पर्सनल. ओके. सर बैलेंस शीट में खाली एक जन का करंट दिया है तो भी सबका बनाना पड़ेगा? 2 जन का तो दिया है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ो. आज तो सर तीसरा का नहीं दिया है ना, तो उसका नील बैलेंस लिखने का. नील बैलेंस लिख दो या छोड़ दो, डैश कर दो, चलेगा. नहीं बनाओगे तो भी चलेगा तीसरे का. बट अभी जहाँ 2 कॉलम कर रहे हो तीसरा भी बना दो. शायद कुछ टेक ओवर एक और किया हो सम के बीच में, करंट काम लेकिन आ सर जाए. अगर लॉस आया तो बाद में वो तीनों के करंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना. लॉस आएगा तो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा तीनों को, और तुमको बीच में कुछ टेक ओवर किया उसके लिए भी बनाना तो पड़ेगा ही. यस. You have to make the current account as well as capital account of सर all इसमें the. जर्नल है. इसमें जर्नल है, तुमको खुद से करना है इसका जर्नल.
लेट्स बिगिन। बैंक है कि कैश देख लो जरा ध्यान से। कैश अकाउंट है ये सब में भी, सो कैश। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। द कैपिटल बैलेंसेस, इंदु, इंदर एंड इंदिरा तीनों का कैपिटल दिया हुआ है पहले। गो टू कैपिटल अकाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, साथ में करते जाओ फटाफट। 25, 15, 1000, 25,000, 15,000 एंड 1000। बाय बैलेंस बीडी कैपिटल में लिख दिया। करंट में चले जाओ, करंट में इंदिरा का क्रेडिट है और इंदर का डेबिट साइड पे। तो करंट अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी 500 in Indira on the credit side and Inder it is on the debit side. To balance BD, 4,900. So one partner is having credit balance, one partner is having debit balance और तीसरे का कुछ बैलेंस ही नहीं है। तुम्हारो गोली लिखने की जरूरत ही नहीं है तुमको, बराबर है। उसके बाद चेक कर लो कुछ लॉसेस है या कुछ रिजर्व्स है तो डिस्ट्रीब्यूट कर देना, कुछ भी नहीं है। सो आई विल गो टू द अदर एसेट्स। उसमें कैश है मेरे पास, कैश का बैलेंस लिख दो सबसे पहले। टू बैलेंस बीडी, कैश इज हैविंग डेबिट बैलेंस, टू बैलेंस बीडी 500 रुपया था बैलेंस शीट एंड होने पे, डिसोल्यूशन शुरू होने पे। फिर चले जाओ आपके रिमेनिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, यू सिंपली ट्रांसफर देम। सो टू सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर करते जाओ फटाफट। टू सन्ड्री एसेट्स में सबसे पहला डेटर्स 30,000, स्टॉक 23,100, फर्नीचर 5,000, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 10,000। करंट अकाउंट हमने ऑलरेडी लिख दिया है, टोटल कर दो इसका 15, 38, 68, 100, 68, 100 हो गया। बाकी लाइबिलिटीज डाल दो क्रेडिट साइड पे, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। उसमें यू आर हैविंग क्रेडिटर्स ऑफ 28 एंड लोन ऑफ 4,000, creditors of 28 and loan on mortgage of property. That's 4,000. The total is 32,000. I think we have emptied the balance sheet. Please check. All of the items must have been transferred. शुरुआत करने के लिए हमने बैलेंस शीट को खाली कर दिया। Now let's proceed with the next step. Krisha, can you tell me the next step? Sorry. बैंक टू रियलाइजेशन। तो यहाँ पे आ जाएगा कैश टू रियलाइजेशन, सेल आउट द एसेट्स और बाय कैश अकाउंट। रियलाइजेशन में कितना पैसा आ रहा है देखो, कैश दे शेयर्ड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 6:6:4। दैट इज व्हाट 3:3:2। सिंप्लीफाइड इट इज 3:3:2। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द अबव डेट। ओके, ध्यान से पढ़ना सब लोग। द एसेट्स रियलाइज्ड एज अंडर, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी रियलाइज 6,000। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बेच के यू गॉट 6,000 rupees. Then furniture realized 1,000, furniture बेच के मिला 1,000 रुपया। Then stock realized 13,000, stock को बेच के 13,000 रुपए मिले। ये सब अलग अलग एंट्री नहीं है, एक कैश टू रियलाइजेशन। सबका कॉमन एंट्री है कैश टू रियलाइजेशन। मैं खाली इंडिविजुअल डिटेल बता रहा हूँ क्या क्या बिका कितने में। फिर डेटर्स रियलाइज्ड 15,000, सो डेटर्स से 15,000 रुपए आ गए। डेटर्स से 15,000 रुपए आ गए। 30,000 के डेटर से 15,000 रुपए आ गए। एक्सपेंसेस, फिर क्रेडिटर्स और फिर इंस्टॉलमेंट्स। सो आई थिंक एसेट्स पार्ट इज डन।
28, 29, 35,000 is the total, right? 35,000. Getting that 35,000. The corresponding entry buy cash का हो जाएगा cash में to realization. Cash में to realization account 35,000. 35,000 रुपए मिल गए एसेट बेच के. Buy cash में to realization 35,000. 35,000 you received from sale of asset. Check. Is there any asset getting taken over, guys? Please check. Tell me. कोई asset take over हो रहा है? Check करके बताओ. Is there any asset getting taken over? No. बराबर है. अच्छा, अगर टेक ओवर हुआ होता तो हम लोग कौन से अकाउंट के थ्रू टेक ओवर करते? करंट अकाउंट. करंट अकाउंट. नॉट वाया कैपिटल बट वाया करंट. ओके, करंट के थ्रू करते. ये याद रखना है, आगे वाले सम में आएगा भी. उसके बाद जाते हैं इसमें अपना लाइबिलिटी पार्ट पे. तो लाइबिलिटी को पे ऑफ करने का एंट्री क्या होगा? भूमि परमार, कैन यू टेल मी द एंट्री टू पे ऑफ लाइबिलिटीज? रियलाइजेशन टू कैश. नॉर्मली इट इज लाइबिलिटी टू कैश, बट यहाँ पे क्योंकि लाइबिलिटी अपना अस्तित्व खो चुकी है, ठीक है, लाइबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन, so we are directly passing realization to cash. Realization to cash for all the liabilities, whether recorded or unrecorded. Okay, recorded unrecorded asset, recorded unrecorded liability, entry remains same. So check करते जाओ क्या क्या पे किया. सबसे पहला रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किया हमने 2,000 रुपए. तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वी हैव पेड 2,000 रुपीज. और क्या पे किया है चेक करो. क्रेडिटर्स अग्री टू टेक 50% ऑफ द अमाउंट इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर क्लेम्स. सो क्रेडिटर को हमने टेबल पे बिठाया और मांडवली किया. ओके, उनको 50% में पटा लिया. तो 50% ही देना है उनको, क्रेडिटर्स को. We are not giving full amount, we are paying only 14,000 rupees. Okay, we negotiated with the creditors and we brought them to 50% to settle. So 14,000 पे we are settling our creditors. Then that's it. और कुछ लाइबिलिटी के बारे में दिया ही नहीं है. हो गया क्या? खत्म लाइबिलिटी. आई थिंक लोन को भूल मत जाना. कोई लाइबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो उसको पे ऑफ करना पड़ेगा. लोन ऑन मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी, बुक वैल्यू 4,000. ओके, तो दिस इज 14 प्लस 4, 18 प्लस 2, 20. रिमेंबर दिस. लाइबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो पे इट ऑफ एट बुक वैल्यू. अभी प्रैक्टिकली कोई बता सकता है? अगर आप प्रैक्टिकल डिसोल्यूशन कर रहे हो, मैंने आपको एक हिंट दी थी शुरुआत के लेक्चर्स में, देखते हैं किसको याद है ये. प्रैक्टिकली अगर आप बिजनेस को डिसॉल्व कर रहे हो तो इन तीनों लायबिलिटीज में आप कौन सी लायबिलिटी पहली पे करोगे, कौन सी दूसरी पे करोगे और कौन सी तीसरी पे करोगे? रियलाइजेशन फर्स्ट. सबसे पहला लोन सेकंड, फिर लोन ऑन मॉर्गेज सेकंड और फिर क्रेडिटर थर्ड. व्हाई सो? मॉर्गेज प्रॉपर्टी को पहले छुड़वाना पड़ेगा. हाँ, मतलब वो सिक्योर्ड है. वो सिक्योर्ड है ना. और पहले अगर रियलाइजेशन का एक्सपेंस ही पे नहीं करेंगे तो ये सब होगा ही नहीं, तो वो पहले मेन है इसलिए. हाँ, रियलाइजेशन एक्सपेंस तो सबसे पहला चाहिए. परफेक्ट. उसके बाद लोन ऑन मॉर्गेज. क्यों? क्योंकि वो सिक्योर्ड है. कभी भी जो सिक्योर्ड लायबिलिटी होती है ना, उसका प्रेफरेंस पहले होता है. सिक्योरिटी बेच के जो पैसा आता है उसी को जाता है. फिर अनसिक्योर्ड की बारी आती है. अनसिक्योर्ड मतलब बिना कोई सिक्योरिटी की लायबिलिटी. उसमें ये क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आपका एक्सपेंसेस, ये सब आ जाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट. ये अनसिक्योर्ड वाले कैटेगरी है. और उसके बाद आप पार्टनर लोन पे ऑफ करते हो और उसके बाद कैपिटल अगर कुछ बचा तो. ओके, तो प्रैक्टिकली जब भी बिजनेस डिसॉल्व होता है तो ये बड़ी दिक्कत की चीज होती है, क्योंकि बिजनेस डिसॉल्व होगा ड्यू टू लॉसेस. तो लॉसेस में आपके पास पैसे ही नहीं होंगे. तो चूजिंग द ऑर्डर ऑफ लायबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, और ये ऑर्डर हम अपने मन से चूज नहीं करते हैं, एक्ट में दिया हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट में दिया हुआ है. अपने को ऑर्डर सिंपली फॉलो करना है. तो पहले से रियलाइजेशन एक्सपेंस करना है, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन करना है, या कोर्ट के जो वकील है, जो तुम्हारा लॉयर है, उसका डिस्चार्ज करना है रेम्यूनरेशन. फिर योर सिक्योर्ड लायबिलिटी, फिर योर अनसिक्योर्ड लायबिलिटी. उसमें भी पहले गवर्नमेंट ड्यूज, टैक्सेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज, प्रोविडेंट फंड वगैरह का करना है. उसके बाद
क्रेडिटर, बिल्स पेबल वगैरह आएंगे, उसके बाद लोन, उसके बाद कैपिटल। ठीक है, तो ये ऑर्डर हम लोग ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी में वापस देखने वाले हैं प्रॉब्लम्स करते वक्त, तो रिमेंबर दैट। ये तो आपका क्या है, एकदम मजे मजे में सब लोग राजी खुशी बिजनेस बंद कर रहा है, सब लोग पैसे वाले अमीर लोग हैं, सबको बिजनेस ऐसे ही टाइम पास के लिए बंद करना है, इसके लिए वी आर शटिंग डाउन द बिजनेस, वी हैव इनफ कैश विद अस, so we are not following any particular order of liability. Okay, since we are having enough of money, order of liability is not important, we can discharge any liability in any order, that's absolutely fine over here. But in case of insolvency, this will be of big importance, which happens practically. So realization में to cash, तो cash में आएगा by realization, cash में आएगा by realization, कितना था 20,000। सर पेपर में तो चलेगा ना ऑर्डर ये वाला? और पेपर में यही करना है तुमको, पेपर में कोई ऑर्डर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी में हम लोग ऑर्डर फॉलो करेंगे, अभी आगे प्रॉब्लम्स आएंगे, सब पार्टनर बैंकरप्ट हो जाते हैं, तभी ये ऑर्डर फॉलो करना है। नॉर्मल सम्स में कोई जरूरत नहीं ऑर्डर करने की, नॉर्मल सम्स हम लोग जैसे करना है वैसा ही करना है, सेम क्लास में सेम। ओके, रियलाइजेशन टू कैश, कैश में बाय रियलाइजेशन, that part is taken care of, no liability has been taken over, तो आपका प्रॉफिट लॉस आप ढूंढ सकते हैं। बताइए टोटल क्या आएगा? 88,100 कितना आ रहा है? बाय पार्टनर कैपिटल, बाय पार्टनर 21,100 बाय पार्टनर करंट 21,100 का लॉस है, राइट? हेलो, यस सर। 21,100 partner current, Indu, Inder and Indira current, Indu current, Inder current, Indira current, please calculate and tell me. 3:2 7913 7913 7912 and 5275. please check properly. This is your loss on realization. Indu current, Inder current, Indira current, 7913 7912 5275. All right, okay. बाय पार्टनर करंट का करस्पॉन्डिंग एंट्री पार्टनर करंट में आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 7913 7912 5275. अब थिंक एंड टेल मी हाउ विल यू डू द इंसॉल्वेंसी पार्ट विद करंट? अभी अभी किया हमने लास्ट समय। व्हाट इज द प्रोसेस? सबसे पहला ट्रांसफर टू कैपिटल, ट्रांसफर ऑल द करंट अकाउंट बैलेंस टू कैपिटल। गाइस याद आया? ये सीधा धड़ाधड़ चालू मत हो जाना इंसॉल्वेंसी के साथ। ओके, पहले पूरा करंट उठा के कैपिटल में डालो, फिर कैपिटल के साथ आराम से सॉल्व द प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी। ठीक है, पहले करंट उठा के कैपिटल में डाल दो। दिस इज 7913, दिस इज 7913, तो इधर क्या आएगा 7913, if इंदू के कॉलम में 7913। ओके, देन लिखोगे क्या? तो बाय इंदू कैप, इंदू करंट में बाय इंदू कैप, तो इंदू कैप में टू इंदू करंट 7913। ये इंदू का करंट बंद होके चला गया कैपिटल में, बराबर। इंदर का भी ऐसे बंद करो तो कितना आ जाए? ये 12,812 आ रहा है, 12,812। इधर इंदू के करंट में आई विल राइट बाय इंदू, इंदर है, सॉरी, नाउ इंदर के करंट में आई विल राइट बाय इंदर कैप, दैट इज 12,812, और इंदर के कैपिटल में इट विल बी टू इंदर करंट, इंदर करंट 12,812, एंड इंदिरा का भी 5275 माइनस 500 कितना आ रहा है? 4775 बाय इंदिरा करंट, बाय इंदिरा कैप, सॉरी, बाय इंदिरा कैप, corresponding entry to Indira current, to Indira current, Indira's column 4775, तीनों का करंट उठा के डाल दिया कैपिटल में,
Now the last part is for your insolvency. So let's see who is getting insolvent over here. Indira was declared insolvent and 50% was recovered from her estate. So make a small note, working note 1. Amount to be received from Indira. Amount to be received from Indira. कितना लेना है, कैसा मालूम पड़ेगा? डेबिट माइनस क्रेडिट. कैपिटल का डेबिट माइनस क्रेडिट करने का. किसका? तो इंदिरा का. तो कितना है इंदिरा का? 4775 minus 1000 is 3775. So 4775 minus 1000 is 3775. तो 3775 इससे पैसा लेना है. We are supposed to receive 3775 from Indira. Are all of you clear with that? Insolvency process clear है सबको? 3775 लेना है. फिर चेक करो how much is she getting. Indira 50%. Indira brings 50%. Indira brings 50%. तो करो 50%. इसका कितना आता है? 3775 का 50% is how much? 1887.5. 887.5. तो 1888 कर दो and 1888 को डिवाइड सर करो. 1887 रखो. हाँ 1887 रखो तो अच्छा रहेगा ना. 3:3 है, इक्वली डिवाइड हो रहा है. तो बचा हुआ 1888 उसका नेट डेफिशिएंसी है. नेट डेफिशिएंसी ऑफ इंदिरा. ओके अच्छा, ये 1887 जो पैसा मिला उसका क्या एंट्री करोगे आप? दैट विल बी बैंक टू इंदिरा कैप. कैश है कि बैंक? कैश है. तो कैश टू इंदिरा कैप. तो इंदिरा कैप में बाय कैश 1887 बाय कैश. और कैश में आएगा टू इंदिरा कैप. 1887 ये पैसा आ गया. अब जो नहीं आया 1888 उसको कौन शेयर करेगा? विल बी शेयर्ड बाय Indu and Indar in their PSR. What is the PSR between the two? 3:3. That is 1:1. तो 1:1 में डिवाइड करो तो कितना आ रहा है? ये 944 आ रहा है. 944 प्लीज चेक. 944 राइट. सो एंट्री क्या होगा इसका? इंदु इंदर टू इंदिरा. तो इंदु इंदर टू इंदिरा. तो इंदु में टू इंदिरा 944 और इंदिरा में यहाँ पे क्रेडिट साइड पे बाय इंदु कैप 944. देन इट इज इंदर टू इंदिरा. तो इंदर कैप में टू इंदिरा कैप वही लाइन पे लिख सकते हो 944 एंड बाय इंदर कैप. इंदु कैप इंदिरा कैप में बाय इंदर कैप 944. इंदिरा's कॉल. So that will settle your Indira. Indira का टोटल टैली हो जाएगा ऑटोमेटिकली. All of you got that? Sorry. And then shut down the remaining two partners. Both the partners are having surplus. So to cash. Total बताओ कितना आ रहा है? This is 25,000. This is 15,000. Has anyone calculated the balance? Please tell me. 16143. And सर मैंने हाँ बराबर है 1244. 1244. Okay, to cash का corresponding entry by Indu cap. Cash में by Indu cap 16143 and by Indar cap. By Indar cap 1244. That's it. Your cash balance should tally. 37387. 37387. 37387. जर्नल ड्रॉ करो फटाफट. तो ये जर्नल लास्ट है ना? हाँ जर्नल लास्ट है. जर्नल इज द लास्ट पार्ट. करो डिस्कस की ट्राई कर रहे हो जर्नल खुद से? सर हम लोग कर रहे हैं. कर रहे हो ट्राई सब लोग?
नरेशन में कोई डाउट है तो आस्क मी. आई एम मार्किंग द जर्नल एंड कीपिंग ओवर हियर. देख लो, मार्क करके रख रहा हूँ मैं एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज मार्क करके रख रहा हूँ. खुद से ट्राई करो. सर वो लास्ट का सेटलमेंट का नरेशन क्या रहता है? सरप्लस एंड पार्टनर्स कैपिटल पेड ऑफ ऑन फाइनल सेटलमेंट. और सर वो जो करंट को ट्रांसफर कर दे तो उसमें बीइंग बैलेंस इन पार्टनर्स करंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल. बैलेंस इन पार्टनर्स करंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल्स. ओके. और कोई डाउट्स हो नरेशन में तो आस्क फटाफट. खुद से ट्राई करो ऑल द जर्नल एंट्रीज. Please go back on mute if you have asked the doubt. ये तीनों एंट्रीज अलग होंगी आपकी, जो करंट से कैपिटल में जा रहा है, और तीनों का नरेशन सेम है. बैलेंस इन करंट ट्रांसफर टू कैपिटल, बैलेंस इन करंट ट्रांसफर टू कैपिटल. और वो डेफिशिएंसी का पार्ट पेमेंट में क्या आएगा? Being part payment received from Indira. Being part payment received from Indira. Journal entries का marking are there on the screen. सर Yes. कैन आई लीव? Wait. हाँ, तुम SK ना, ठीक है. बाकी लोग वेट करो. HR हुआ स्टार्ट यशी? कॉलेज में क्या चालू है NMBT भाई? बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो हो गया. सर वो NPO चालू है. अभी भी NPO चालू है सेकंड. हाँ. और उधर डिसोल्यूशन. अच्छा, डिसोल्यूशन ही चालू है. हाँ. सेम चैप्टर. क्या हो गया? बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया बोधार में? नहीं, पहले फाइनल अकाउंट्स था और अभी डिसोल्यूशन. हमारे में डिसोल्यूशन और अभी एडमिशन. अच्छा. There should be 11 entries. Please check. Narration किसी में कोई प्रॉब्लम है तो ask. ये 3 एंट्रीज का नरेशन इज बीइंग बैलेंस इन पार्टनर करंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल. हाँ, तीनों का. बीइंग बैलेंस इन इंदू करंट ट्रांसफर टू इंदू कैप, बैलेंस इन इंदर करंट ट्रांसफर टू इंदर कैप, ओके, एंड इंदिरा करंट ट्रांसफर टू इंदिरा कैप. लास्ट एंट्री का नरेशन बीइंग सरप्लस इन पार्टनर्स कैपिटल पेड ऑफ ऑन फाइनल सेटलमेंट. सरप्लस इन पार्टनर्स कैपिटल पेड ऑफ ऑन फाइनल सेटलमेंट. Sorry. I'll finish off.